This is H2M1. So convection part is covered. Next topic is radiation. In heat transfer, the last topic is radiation. The last topic is radiation. So what is radiation? I think we have covered some basic of all three topics: conduction, convection, and radiation. उनके movement से related है ना. So what you understand by radiation? Definition we have already covered. What's the definition of radiation, बेटा? बताओ. कुछ बताया था in last lecture. क्या बताया था? A medium not required for heat Yeah, transfer. the process, the mode of heat transfer, the mode of heat transfer in which medium is not required. Energy travels from source to receiver, okay, directly. Energy travels from source to receiver. Energy will travel from source to receiver. There will be no requirement of medium. And which type of wave do not require any medium? Which type of wave do not require any medium? Electromagnetic. Which wave do not require any medium? EM waves. So all radiation will belongs to the EM waves. Electromagnetic waves. Electromagnetic waves, EM waves. So electromagnetic wave do not don't require any medium. Okay. So radiation will belong to EM waves only. Okay. Only electromagnetic waves will show radiation. Only electromagnetic waves will show radiations. ठीक है. अच्छा, EM waves क्या होती है? They travel with the speed of c, but वो यहाँ पे हम लोग कवर नहीं करेंगे. ठीक है. So radiation belongs to EM waves. EM waves mainly through infrared zone. In case of heat transfer, whenever we talk about heat transfer, so that is mainly belong to infrared zone. ठीक है. अच्छा, what kind of radiation, how much wavelength you can see? Okay, so the wavelength will start, the lambda will start from lambda is equals to 0 to lambda tends to infinity. So radiation of EM waves will start from radio wave, and it will go up to gamma rays. Okay, X-ray will be there, visible light will be there, microwave will be there, infrared zone will be there. Okay, so how many type of wave you can see? So radio wave, okay, infrared, microwave, visible light, all spectrum. Okay, visible light, X-ray, gamma ray, है ना. ठीक है. So all spectrum will be covered in EM wave radiation. But whenever we talk about heat transfer, mainly we are talking about infrared. इंफ्रारेड में सबसे ज़्यादा हीट होती है. ठीक है, इंफ्रारेड में हीट सबसे ज़्यादा होती है. तो जब भी हम रेडिएशन की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रारेड ओनली. हम सिर्फ इंफ्रारेड की बात कर रहे होते हैं. लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही फैक्चुअल है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन केस ऑफ रेडिएशन, इन केस ऑफ स्पेसिफिकली जब हम हीट की बात करते हैं. ठीक है, देखो सनलाइट इज कमिंग, सनलाइट इज हैविंग इंफ्रारेड, रेडियो वेव, सब कुछ. विजिबल लाइट भी उसमें, विजिबल तो में दिखता है तो लगता है बस यही है, लेकिन और भी स्पेक्ट्रम होते हैं जो नहीं दिखते हैं. तो हीट किसमें सबसे ज्यादा होगा? इंफ्रारेड वाले में होगा. किसमें होगा? इंफ्रारेड वाले में. समझ में आया कि नहीं आया? इसमें यूवी भी होगा, अल्ट्रावायलेट भी होगा, है ना. लेकिन इंफ्रारेड में सबसे ज्यादा हीट होता है. क्लियर है? इज इट क्लियर? So lambda equals to 0 and tends to infinity क्या है? मतलब
रेडियो वेव का लैम्डा देखो, थोड़ा सा उल्टा लिख गया है इसलिए कंफ्यूजन होगा। लैम्डा टेंड्स टू यहाँ पे इन्फिनिटी कर दो और यहाँ पे टेंड्स टू जीरो, है ना। ठीक है, इस तरीके से मतलब कि रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, फिर गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है ना, इस तरीके से। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सारी वेव होगी जिसकी वेवलेंथ टेंड्स टू जीरो होती है और जिसकी वेवलेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, वो भी वेव होगी। ठीक है, क्लियर। The spectrum Yeah, will be sir. having all radiation having zero wavelength to infinity wavelength. Clear? Is it clear? Yes, sir. चलो, अब देखो एनर्जी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है ये क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट, दिस वन, E naught energy is coming. E naught is the energy. This is the E naught. This is incoming energy. क्या है? Incoming energy. Okay. This is incoming energy. Whatever amount of energy is coming, we will call it E naught. So what will happen? This is the object. Some portion of energy will get reflect. Some portion of energy will get reflect. We call it E reflected. Okay. This is called reflected energy. Reflected energy. Suppose if you are having a good reflector in your window, so what will happen? This is your window. This is the glass of window. So what will happen if it's a good reflector? So if sunlight is coming, so it will reflect most of the sunlight. तो इससे ठंडा रहता है अंदर वो रूम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिविटी। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर है? सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल कम इनसाइड, it will absorb some energy. This is called E absorbed. We call it E absorbed. Some portion will get transmit, है ना, जो पास हो जाता है, the amount of energy that will get pass through the object, we call it we call it EET, है ना। तो ये क्या होता है? एनर्जी, दिस इज एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब। बस इतने ही प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज में, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल लेते हैं, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्लास। सपोज इफ ग्लास इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिव, है ना, सो इट विल लुक लाइक अ मिरर। किसकी तरह दिखेगा? इट विल लुक लाइक अ मिरर। क्लियर है कि नहीं? है ना, क्लियर। देखो, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्लास, वी विल टेक एग्जाम्पल ऑफ ग्लास। एग्जाम्पल वी विल टेक ऑफ ग्लास। सपोज if reflectivity is best, okay, if glass is perfectly reflective, then it will look like a mirror. If it absorb all the energy or all light falling over it, it will look like black, वो black की तरह दिखेगा, है ना। अगर कोई चीज पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेती है या एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है तो दैट विल लुक लाइक अ ब्लैक कलर। एंड इफ इट ट्रांसमिट एवरीथिंग, जैसे पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, आपको पता ही नहीं चलेगा, वहां पे जो एनर्जी इधर से आ रही है पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जा रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसमीटर, है ना, अच्छे से ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट होगा वो। क्लियर है कि नहीं? सो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? ई नॉट इज द एनर्जी इनकमिंग, उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? सर ग्लास में कुछ अब्जॉर्ब नहीं होता। ट्रांसपेरेंट में हाँ सर। अभी मैं ग्लास पे आता हूँ वापस। ठीक है, ग्लास पे आके बताता हूँ। ठीक है, ग्लास का एग्जांपल अभी फिर से लेते हैं। ठीक है, पहले ये बताओ, इज इट करेक्ट? ई नॉट इज इक्वल्स टू ई आर प्लस ई ए प्लस ई टी, हाँ या ना? इज इट करेक्ट? बोलो यार, ये जो आ रही है इन तीनों का सम इसके बराबर ही तो हो सकता है कि नहीं? बोलो, नहीं समझा? हाँ सर।
अरे 10 जूल आ रहा है, 2 जूल इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, 6 जूल इधर हो गया, 2 जूल ट्रांसमिट हो गया, तो जो टोटल इनकमिंग है उसी में तो ये सब होगा। हाँ हाँ, सर। ओके। So if when you divide it by E naught, ER by E naught, EA by E naught, and ET by E naught. So we call it, this will become R. This is we call A. This we call T. RAT. RAT. Where R is reflectivity. We call it reflectivity. Reflectivity. A is absorptivity. A is absorptivity. T is transmittivity. T is transmittivity. क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन तीनों का सम 1 है, तो किसी का भी वैल्यू क्या हो सकता है, इन सब का वैल्यू 1 से तो छोटा ही होगा। क्लियर? R will be less than or equals to 1, A will be less than or equals to 1, T will be less than or equals to 1। हाँ या ना? इज इट क्लियर? Sir, हाँ बेटा। can you please repeat 1 is equal to R plus A plus T? बेटा when you divide E naught by E naught it will become 1 ना? Yes, sir. नहीं समझा? नहीं समझा वो, but what about E naught नीचे? E naught by E naught कितना होता है? इसको ये नहीं 1 सर, कर दिया। RHS। हाँ हाँ सुनो तो बेटा, E naught by E naught will become 1, ER by E naught we call it reflectivity, this we call it reflectivity, this we call it absorptivity, okay, this we call it transmittivity। समझा कि नहीं? अब समझा? हाँ सर। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर Yes है? sir, thank you. ओके। अब देखो क्या होगा, सपोज इफ यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट, उसकी क्या हो सकती है, आर ए टी इस तरीके से हो सकती है, आर ए एंड टी, एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यू हैव टू टेल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज it is perfectly reflecting, suppose R is equals to 1, A is 0 and transmittivity is 0, perfectly reflecting, तो कैसा दिखेगा, it will look like a mirror, हाँ या ना, mirror, or it will look like that color body, whatever amount of reflection is, मतलब कि इस पे जो भी आ रहा है इंसिडेंट लाइट उसी तरीके से है ना, और कलर बॉडी, whatever amount of color is falling over it, it will look like that color ना, color body। Why I'm call it color body? Because suppose if something is red in color, so why it's showing red color, because it is reflecting red color। So if its reflectivity is 1, so that means it is reflecting all of the radiation falling over it, तो जो भी कलर उस पे गिर रहा होगा it will look like that color, है ना, उसी तरीके से दिखेगा, है कि नहीं? क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes sir. Yes. Next Yes. one is, suppose reflectivity is 0, all radiation, it is absorbing all the radiation, so it now if it absorb all the radiation it will look like black body, black color, ठीक है, we call it black body। what is black body? A body which absorb all the radiation falling over it, अगर वो सब कुछ ले लेगा तो it will look like black in color during absorption, क्योंकि कुछ एनर्जी निकलेगा ही नहीं तो आपको तो ब्लैक ही दिखेगा ना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? बोलो बेटा, क्लियर है हाँ कि सर। नहीं? Yes. Yes sir. And the last one is 0 0 1, so that means whatever amount of energy is coming, it is passing all the radiation or transmitting all the energy, so it will look like invisible body। कैसा दिखेगा? Invisible body, जस्ट लाइक परफेक्ट ग्लास, है ना, जैसे आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट अच्छे से ग्लास होंगे तो वो आपको इनविजिबल दिखेंगे, यू कांट डिफरेंशिएट कि वेदर देयर इज एयर और ग्लास, ठीक है। तो अगर ग्लास अच्छा सा रिफ्लेक्टिव है, पहला, इफ ग्लास का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है, सो इट विल लुक लाइक अ मिरर, हाँ है ना। इफ ग्लास का एब्जॉर्प्शन अच्छा है तो ब्लैक दिखेगा, एंड ग्लास का ट्रांसमिटिविटी इज 1, तो प्योर ट्रांसपेरेंट यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लास एंड एयर, बता ही नहीं पाओगे आप कि ग्लास रखा है या एयर, है ना, प्योर ट्रांसपेरेंट।
समझा कि नहीं? क्लियर? हाँ सर। रियल लाइफ में इनमें से किसी का भी वैल्यू वन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे परफेक्शन वाला लॉ लग जाता है कि परफेक्शन कभी अचीव नहीं होता है, ठीक है? अगर आप देखोगे बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लास देखोगे जो ट्रांसपेरेंट लगे, उसमें भी सम हाउ यू विल सी सम रिफ्लेक्शंस आर देयर, है ना? जैसे अगर ग्लास पे खड़े हो गए आप, ग्लास डोर पे, यू विल सी योर इमेज, हल्का सा आपको अपना इमेज दिखता है ना? है कि नहीं? बोलो, दिखता है कि नहीं हाँ दिखता सर। है? दिखता है ना? सो सम रिफ्लेक्टिविटी विल बी देयर along with the transmittivity, है ना? तो ये है, आपको बस इतना सा समझना है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग ओवर द ऑब्जेक्ट, सम एनर्जी विल गेट रिफ्लेक्टेड, सम विल बी एब्जॉर्ब, सम विल बी ट्रांसमिटेड। जो जो रेशियो में रिफ्लेक्ट, एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट करेगा उसको रिफ्लेक्टिविटी, एब्जॉर्बिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलो नोट कर लो। Tinted glasses, so you can't see what's going on inside. तो उसका क्या होगा? RAT. उसमें क्या होता है, इन केस ऑफ tinted glasses, द एक्सटीरियर दैट फिल्म विल बी हैविंग मच बेटर रिफ्लेक्टिविटी एज कम्पेयर टू द इंटीरियर वन। तो बाहर का रिफ्लेक्टिविटी बहुत अच्छा होता है, ठीक है? और अंदर से जो है ट्रांसमिटिविटी अच्छा होगा, ठीक है? ठीक है सर, so तो ग्लास होने पर इसके ऊपर एक फिल्म डाला है ना ब्लैक कलर का। हाँ हाँ हाँ, फिल्म लगाते हैं उसमें। उसमें क्या होता है, बाहर बाहर से अंदर का नहीं दिखता, अंदर से बाहर का दिख जाता है ना? हाँ सर। ठीक, हाँ वही रहता है, ठीक है? Yes. नोट कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट इज ब्लैक बॉडी। ब्लैक ब्लैक बॉडी क्या होती है? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी which absorbs which absorbs all the radiations all the radiations falling over it falling over it when source is present and emits all the radiation absorbed all the radiation absorbed जो absorb कर चुके थे ना, when source is absent। जैसे for example, this is the body, when source is present, energy is coming of the body, so it will absorb all the radiation. E absorb is equals to E naught. It will absorb all the radiation, so it will look like black in color. So this is the black body. This is a black body. And when the source is absent, there is no source. If the source is not there, so what will happen? Whatever amount of energy it has absorbed, it will start radiating that amount of energy. Whatever amount of energy it has absorbed, it will start radiating that amount of energy, irradiation. Okay, so whatever amount of energy it's holding, it will radiate the energy. Okay, all entire energy. Okay, Sir, yes, beta. so EA is equal to ER. E is equals to EA is equals to ER. Yeah, EA is equals to ER. Yeah, total absorbed energy will be released in radiation. Okay, this is the radiated energy. Radiated energy. This is the absorbed energy. Absorbed energy. This one was the incoming energy. Incoming energy. Here again, EA is absorbed energy. Absorbed energy. Okay. So black body क्या होता है? जब उस पर radiations पड़ते हैं, so it will absorb all the radiation, and when the source is removed,
इट विल रेडिएट ऑल द रेडिएशन। जैसे आपने देखा होगा वॉच में कुछ रिफ्लेक्टर टाइप का ऐसा आपने देखा होगा कि रेडियम टाइप का, हम उसे रेडियम कॉल करते हैं कि उसको आपने रोशनी में रखा और उसके बाद जब आपने रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दिया तो इट विल रेडिएट एनर्जी। देखा है उसमें लाइट निकलती है, देखा है सब? हाँ या ना? देखा है कि नहीं देखा है? ऐसी Yeah, वॉच but देखी it's है, ऐसे कुछ स्टिकर्स देखे हैं जो रात में लाइट रेडिएट करते हैं, ऐसे रिफ्लेक्टर्स देखे हैं? देखे हैं? Yes, sir. ठीक है, वो बिल्कुल ब्लैक बॉडी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। तो जो भी चीज़ें रेडिएट हो रही हैं, जो भी चीज़ें रेडिएट हो रही हैं तो वो हमें दिखेंगे। ब्लैक बॉडी क्या करेगा? व्हेन व्हेन एनर्जी इज फॉलिंग ओवर इट, इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन। पूरा का पूरा क्या कर लेगा? उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब सोर्स हट जाएगा तो पूरा का पूरा एनर्जी रेडिएट कर देगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी, है ना? ये ब्लैक बॉडी इस तरीके से रहेगा। A ब्लैक, glowing effect. यस बेटा, Glowing effect. ग्लोइंग इफेक्ट या ग्लोइंग इफेक्ट, या यू कैन कॉल इट ग्लोइंग इफेक्ट, वो बेस्ट है। बिकॉज ग्लोइंग इफेक्ट में क्या होगा? इट विल रेडिएट एनर्जी, ठीक है? इट विल रेडिएट एनर्जी, ठीक है? सो इन केस ऑफ ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिविटी इज 1, एब्जॉर्प्टिविटी इज 1, ठीक है? एमिसिटी भी, इसको यहाँ पे जो एमिट कर रहा है यहाँ पे बोलते हैं एमिटिविटी, है ना? सॉरी, एमिटिविटी नहीं, एमिसिविटी, है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्प्टिविटी के बारे में तो पढ़ लिया है। E is also 1. What is E? E is emissivity. Emissivity. Clear? ये क्या है? Absorptivity. Absorptivity. Clear? This is emissivity. ठीक है? So in case of black body, during absorption A is equals to 1 and during emission E is equals to 1. ठीक है? E is equals to 1. Clear है कि नहीं? Is it clear? क्लियर है? Awesome. ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी। अच्छा, इज ब्लैक बॉडी नेसेसरी टू बी ब्लैक इन कलर? इज इट नेसेसरी? तो यहाँ पे नोट कर लो, ऑल ब्लैक कलर बॉडी, ऑल ब्लैक कलर बॉडी आर नॉट black bodies, and black body is not black in color, black in color, ठीक है? All black color body are necessary to be black bodies and a black body is not necessary to be black in color. अच्छा, during absorption it will look like black. सिर्फ एब्जॉर्प्शन के समय वो ब्लैक दिखेगा, बाकी टाइम पे हो सकता है वो रेड कलर का हो, ठीक है? ये भी हो सकता है, देखो हो क्या सकता है, सपोज यू आर हैविंग अ रेड कलर ऑब्जेक्ट, इट इज रेड इन कलर, बट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन एंड इट विल लुक लाइक ब्लैक, वो ब्लैक की तरह दिखने लग जाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? Is it So clear? also during absorption it is black and Yeah, otherwise it during will be any absorption it color. will look like black. During absorption, ठीक है? Only during absorption. During absorption, black color. ठीक है? So during emission it will glow, no? During emission it will look like that color, whatever amount of wavelength it is emitting, तो वैसा दिखेगा वो, ठीक है? So okay, suppose it absorb red color light, so it will look red when glowing. हाँ, इट विल लुक लाइक, देखो जो भी अभी मैं अभी कलर ऑफ बॉडी भी समझाऊंगा मैं, अभी आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे पेन खिंच गया है, तो इसको सही से कर लो, ब्लैक कर गया तो फिर वो पेन खिंच जाता है कभी कभी। नेसेसरली ब्लैक इन कलर, है ना? ऑल ब्लैक कलर बॉडी आर नॉट नेसेसरली, यहाँ पे भी डाल दो, है ना? इट मे और मे नॉट बी ब्लैक इन कलर, है ना? मस्ट वाली कंडीशन नहीं होती है ना?
So the examples you gave, they are not black color while absorbing light, right? Which example? Those stickers or the watch. हाँ, because they are not perfectly black body. They are not perfectly black body. Okay. Okay. Yeah. Can we move to the next slide? Are you done with this slide? हो चुका है? Yes, So, sir. radium Yes, which sir. is present at the sides of the road, does it also act as a black body? We can call radium, that is not the radium always, that is reflector. वो reflector होता है, ठीक है? रोड साइड में reflector is there. When car light falls over it, then it reflect the light, है ना? वो reflector होता है. रेडियम वो होता है जो एब्सेंस ऑफ लाइट में भी लाइट एमिट करे, ठीक है? क्लियर? Okay, जो sir. बैंगल्स होती है ना येलो फ्लोरेसेंट कलर की जिनमें फिल्ड रहता है. हाँ हाँ, वो होता है. नॉट वी कांट से दैट इज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, लेकिन हाँ, इट इज हैविंग सम फीचर्स ऑफ ब्लैक बॉडी. इफ सम एनी ऑब्जेक्ट इज एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी एंड देन रेडिएटिंग, तो वो बिल्कुल ब्लैक बॉडी की तरह काम कर रहा है, लेकिन ब्लैक बॉडी नहीं है वो पूरा, ठीक है? हर एक ऑब्जेक्ट ऐसा काम करता है, हर एक ऑब्जेक्ट ऐसा काम करता है, ठीक है? लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होगा, ठीक है? And sir, जो साइन बोर्ड्स जिसमें नियॉन गैस रहती है वो, किसमें? दो साइन बोर्ड्स जिसमें नियॉन गैस रहती है वो. हाँ, वो तो एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो ब्लैक बॉडी की तरह काफी एक्सटेंट तक काम करेगा. Okay. फायर एग्जिट में आपने देखा होगा, फायर एग्जिट बोर्ड होता है ना, ठीक है? Yeah, sir. हाँ, वो बिल्कुल, वो तो बोल सकते हैं आप, ठीक है? चलो आगे बढ़े. यस बेटा. Also, ना which people stick on the ceiling, moon और stars का, तो वो भी black body है. कौन सा बेटा, फिर से रिपीट करो. वो स्टिकर्स होता है ना बच्चों का जो हाँ सीलिंग पे हाँ लगा. हाँ, अगर उसको लाइट जब बंद करके वो रेडिएट कर, आपको लाइट दिख रहा है ना उससे, हाँ सर. वो रेडिएट कर रहा है ना, तो देखो ब्लैक बॉडी तो नहीं बोल सकते, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ब्लैक बॉडी का मतलब है कि वो पूरा का पूरा लाइट एनर्जी एमिट करे, लेकिन काफी एक्सटेंट तक दैट इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, ठीक है? ठीक है, क्लियर? सीरियल क्लियर? हाँ sure, clear. अच्छा, अब एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप बार बार लाइट से रिलेट कर रहे हो तो कंफ्यूज हो गए. एक साइड रोड है, ये रोड है, दिस इज रोड, ठीक है? दिस इज सॉइल, है ना? साइड में तो सॉइल होता है ना रोड के. अब ये बताओ, ड्यूरिंग पीक सनलाइट, है ना, आपको बिल्कुल नंगे पाँव खड़े होना है, आप किस पे खड़े होना पसंद करोगे, रोड पे या सॉइल पे? किस पे? Soil. सॉइल पे, है ना? क्यों? क्योंकि रोड की रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा है ना? जिसकी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो क्या होगा, और प्रॉपर हॉट वेदर, फुल सन इज देयर, ऐसे इस तरीके से, तो द टेम्परेचर ऑफ रोड विल बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ सॉइल, ठीक है? अच्छा, सॉइल क्या है ना? सॉइल इज बिहेविंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द रेडिएशन, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? ये दिन का बात है. रात में क्या होगा, वही रोड आपको ठंडा लगेगा और सॉइल आपको गर्म लगेगी, फिर सॉइल क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ sir. ठीक है? तो सॉइल इज, यू कैन से यस, इट विल बिहेव लाइक अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम इट विल एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम इट विल रेडिएट एनर्जी, इसलिए सॉइल आपको गर्म फील होगी और रोड ठंडी. समझा कि नहीं समझा? समझे? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, चारकोल जानते हो? चारकोल हाँ sir. चारकोल मच बिहेव मच लाइक ब्लैक बॉडी, है ना? चारकोल आपने देखा होगा हॉट वेदर में, या आपने ट्राइबल लोगों को देखा होगा सहारा डेजर्ट में, ये जो भी हॉट वेदर में रहते हैं, दे यूज चारकोल, है ना? अपने आंखों के नीचे चारकोल लगाते हैं, ठीक है? क्यों लगाते हैं? ताकि आप उनकी इतना पोर्शन जहाँ पे वो अप्लाई कर रहे हैं वो जले ना, क्योंकि क्या होगा, रेडिएशन को चारकोल क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब. आप कहोगे सर एब्जॉर्ब करेगा तो जल जाएगा, नहीं, एब्जॉर्ब करने से नहीं जलता है, एब्जॉर्ब करने से कभी जलता नहीं है, ठीक है?
एब्जॉर्ब करने से वो एनर्जी होल्ड कर लेगा एंड इट विल नॉट ट्रांसफर इट टू योर स्किन, स्किन पे ट्रांसफर नहीं करेगा, फिर वो रेडिएट कर देगा। अगर रिफ्लेक्शन शुरू हो गया तो वहां सरफेस का टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है, द सरफेस टेम्परेचर विल इंक्रीज। समझा कि नहीं समझा? Insulator जैसा है ना? क्लियर? और से charcoal acts like an insulator here, no? Yeah, charcoal will act as insulator as well as a black body. It will absorb the energy and it will in night it will radiate the energy, ठीक है? क्लियर? समझा? Yeah, sir. चलो नेक्स्ट, कलर ऑफ ए बॉडी। So, sir, can we say that a black body acts as an insulator? या यू कैन से ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, लेकिन इंसुलेटर का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, उसको आप मतलब ऐसे जबरदस्ती मर्ज मत करो उसको, ठीक है, ठीक है, उसको मर्ज मत करो। होता क्या, वो एनर्जी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, डेफिनेटली इफ इट इज नॉट ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू ए बॉडी, सो इट विल एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वो हर चीज है दैट जिसका ट्रांसमिटिविटी जीरो है, ठीक है, क्लियर? Yeah, sir. Color of a body is because of two reasons. Because of two reasons. The first one is reflection. Suppose if you are having an object, एक object है, उस पे एक मिनट, you are having an object, उस पे whatever amount of, not the amount, whatever wavelength is coming, suppose some lambda is falling over it, lambda 1 is falling over it and this is reflecting lambda 2 wavelength, ये भी हो सकता है ना, व्हाइट लाइट आ रहा है, रेड कलर कर रहा है, तो जो भी इस पे ये रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट, सो यू विल सी ओनली दैट कलर वॉट एवर द कलर इट इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द reflected color, okay, so the first one is reflection, so you will see only that color whatever the wavelength is reflected by this body, you will see only that wavelength, okay, आप body का color क्या दिखेगा, वही दिखेगा। suppose you are having a red color body and source of light is white, तो क्या करेगा, it will absorb all the radiation other than red को reflect कर देगा, बाकी सब क्या करेगा, absorb कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। दूसरा इज रेडिएशन, द सेकेंड वन इज रेडिएशन, इस इन द केस ऑफ रेडिएशन नो सोर्स इज रिक्वायर्ड, द बॉडी विल एमिट बाय इटसेल्फ, है ना, बॉडी क्या करेगा, खुद अपने आप यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएटेड, सो यू विल सी द कलर, ठीक है, इतना सिंपल सा है, ठीक है, इज इट क्लियर? so which color will it be? विच वन बेटा? अब वो जो कलर एमिट किया है वो कौन सा कलर हो सकता है? किस में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका वॉइस, फिर से बोलो। अभी रिफ्लेक्शन में the color you see is the color that is reflected, फिर यू विल सी द radiation पेंटेड क्या कलर, जो भी कलर पेंटेड है ना उसमें वो दिखेगा। जैसे सपोज यू आर हैविंग अ ग्रीन टी शर्ट, तो ग्रीन टी शर्ट कैसा, अगर व्हाइट लाइट में रखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा, क्योंकि इट विल रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर। किसी भी बॉडी का जो कलर होता है वो क्या होता है, आप उसमें जो भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, तो वो पॉलिश क्या करती है, उसको वो कलर रिफ्लेक्ट कर देती है। अब कहो कि आप ग्रीन टी शर्ट को सिर्फ एक ऐसे हॉल में देखो जहाँ पे ओनली रेड लाइट इज प्रेजेंट, तब आपको ग्रीन नहीं दिखेगा, पता है, मालूम है कि नहीं? अगर आप ग्रीन टी शर्ट को आप देखोगे कहाँ पे, ऐसे जगह पे देखोगे जहाँ पे ओनली रेड कलर इज प्रेजेंट, या कोई भी एक सिंगल कलर है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रेजेंट, ग्रीन की जगह या ब्लू रख लो, तो आपको तब ग्रीन नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्रीन रिफ्लेक्ट होने के लिए है ही नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, सो दैट टी शर्ट विल नॉट लुक लाइक ग्रीन, ठीक है, तो ग्रीन नहीं दिखेगी, ठीक है। radiation के what will the body color be? बॉडी कलर इज द कलर, दैट कलर विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, वो बोलते हैं बॉडी का कलर। सपोज समथिंग इज इन वायलेट कलर, तो वायलेट कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। इफ समथिंग इज ग्रीन इन कलर, सो दैट मीन वो ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। रेडिएशन में भी नहीं, रेडिएशन में कोई जरूरी नहीं उसका कलर वो होना, रेडिएशन में तो जो एनर्जी एमिट कर रहा है वो हो गया, ठीक है। जैसे सपोज इफ यू आर हैविंग आयरन बार,
तो आयरन बार में क्या होगा बताओ? आयरन बार को व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, सो फर्स्ट कलर विल बी रेड, है ना, यू विल सी रेड कलर ऑफ आयरन बार. देन व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट विल बी ऑरेंज, देन और टेम्परेचर येलो, देन ग्रीन, इंडिगो, ब्लू. ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ब्लू, इंडिगो, वायलेट. जैसे जैसे आप करोगे क्या टेम्परेचर इंक्रीज, वैसे वैसे यू विल सी दीज कलर, है ना. टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वी आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर. व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर यू विल सी डिफरेंट स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो आपको वही कलर दिखेगा जो रेडिएट कर रहा है. ठीक है, और जब आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे तो व्हाइट दिखेगा. क्या दिखेगा? व्हाइट. वेरी हाई टेम्परेचर अगर व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, समझ लो मामला खतरनाक है. वेरी हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तब आपको व्हाइट दिखेगा. क्लियर? सर. क्लियर है? हाँ सर. तो और ग्रीन टी शर्ट रेड लाइट में कौन से कलर का लगेगा? रेड लाइट प्रेजेंट है तो रेड ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको रेड ही दिखेगा. ठीक है, तो वो लेकिन उसका भी एक अलग 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 कैलकुलेशन होता है. ठीक है, कि अगर ये लैम्डा फॉल करेगा तो कौन सा लैम्डा दिखेगा. ठीक है, लेकिन ग्रीन नहीं दिखेगा क्योंकि ग्रीन लाइट इज नॉट देयर. ग्रीन लाइट इज नॉट देयर टू रिफ्लेक्ट, है ना. क्लियर है? इज इट क्लियर? सर हाँ, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट में जैसे अगर ग्रीन टी शर्ट है तो वो बाकी कलर्स एब्जॉर्ब करेगा ना ग्रीन के अलावा. बाकी कलर एब्जॉर्ब करेगा, हाँ ग्रीन के अलावा करेगा, लेकिन कुछ सम हाउ इट विल रिफ्लेक्ट ना, जो भी उस पर फॉल कर रहा है कलर उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना. तो कुछ में सिर्फ ओनली रेड इज देयर तो रेड ही दिखेगा ना, रिफ्लेक्टेड में तो रेड ही आएगा ना. फिर रेड का 90% एब्जॉर्ब कर लेगा बट इट विल रिफ्लेक्ट 10%, सो यू विल सी ओनली रेड कलर, है ना. इस तरीके से. तो वो ब्लैक नहीं दिखेगा. नहीं, पूरा का पूरा तो नहीं करेगा, पूरा का पूरा नहीं कर सकता वो एब्जॉर्ब. ठीक है, इवन एक ही मोनोक्रोमेटिक लाइट, सपोज ग्रीन लाइट इज फॉलिंग और रेड लाइट इज फॉलिंग, सो इट विल एब्जॉर्ब 90% और 99% ऑफ द लाइट, बट इट विल रिफ्लेक्ट सम पोर्शन. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है, देखो इट्स वेरी सिंपल. सपोज यू आर हैविंग ए मोबाइल, आपके हाथ में मोबाइल है. ये एग्जांपल आप भूलोगे नहीं, देखना ध्यान से. दिस इज अ स्क्रीन ऑफ मोबाइल. दिस इज अ स्क्रीन ऑफ मोबाइल. सपोज यू आर हैविंग अ मोबाइल ऑफ ब्लू कलर. किस कलर का है? योर मोबाइल इज ऑफ ब्लू कलर, या किसी भी कलर का है, पिंक कलर का है, कैसा भी है ना. मैं बोल देता हूँ दैट्स ब्लू इन कलर. सो द बॉडी ऑफ मोबाइल इज ब्लू इन कलर. सो दिस कलर इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. So light is falling, you are seeing the color. This is because of reflection. This blue color is because of reflection. But whatever amount of energy, जितना यहाँ से निकल रहा है, whatever color is radiated from the screen, this is radiated. This we call it radiation. समझ में आया कि नहीं आया? जो खुद से निकाल रहा है वो. ठीक है. Suppose if a screen is red in color, so it will radiate red, है ना. If screen is yellow in color, so it will radiate yellow. Okay, so color दो वजह से होगा. One is reflection, the second is radiation. Clear? Is it Yes. clear? ठीक है, चलो तो ब्रेक चाहिए, रिज्यूम करते हैं. So the color of a body is because of two reasons. One is reflection, the second is radiation. Clear? Is it clear? So next is radiation energy. Radiation energy, how much it is dependent on type of body, temperature. Okay, so radiation energy depends on everyone is here. Meha present, Sidel present, Devanshi present, बाकी लोग भी प्रेजेंट हैं. Yes, sir. अच्छा, बाकी लोग बुरा नहीं माना करें कि मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ. मुझे जितने लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे मुझे उतने ही लोगों के नाम याद रहेंगे. ऐसा कुछ खास नहीं है इन 3-4 लोगों में, क्योंकि इंटरेक्ट ज़्यादा करते हैं इसलिए उनका नाम याद रहता है. ठीक है, बाकी सब बराबर है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है ना, क्योंकि मुझे नाम जितना उतना ही याद रहेगा ना जितने लोग बात करेंगे. ठीक है. रेडिएशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. और टेम्परेचर में भी कैसा? टेम्परेचर में भी दैट इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4. टेम्परेचर का पावर 4.
where T is in Kelvin. T is in Kelvin. किसका, बॉडी का या सोर्स का, डजेंट मैटर, अभी हम समझेंगे अभी क्या होगा। अभी तुम देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट इज नेचर ऑफ बॉडी। पहले तो देख लो सरफेस एरिया, surface area of body exposed. So radiation is directly proportional to this radiation energy. We call it power. Actually we will call it power क्योंकि we are talking about dq by dt. dq by dt is power. Okay, power. So in the first one dq by dt is proportional to temperature to the power 4. The second one dq by dt is proportional to the area. A is area. Area exposed. Area exposed. Clear? Is it clear? The third one is nature of body. इसका मतलब है उसका A absorptivity and E emissivity. E emissivity पे it will depend कि how much radiation it will absorb or radiate. Okay, is it clear? Clear है? Yes, sir. Okay, so radiation depends on, first is temperature to the power 4, surface area exposed, and nature of body, whether it is a black body or some normal body. Okay, so it depends on its absorptivity and emissivity. Clear? Is it clear? So it's directly proportional to absorptivity and emissivity. No. We will take it in the equation. Actually that is directly proportional to absorptivity and emissivity. लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा है ना कि absorb कब होगा, emit कब होगा, इसलिए ऐसे लिख नहीं रहे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी। सबसे पहले व्हाट इज एब्जॉर्प्टिविटी, तो कर लिया है ना पीछे एब्जॉर्प्टिविटी, लेकिन एब्जॉर्प्टिविटी का ट्रू डेफिनेशन क्या है किसी भी बॉडी के लिए? ए इज एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी। वी विल राइट द सिंबल, यहीं पे लिख लो, अदरवाइज रिवीजन के टाइम पे आपको कंफ्यूजन होगा कि ए क्या था, ई क्या था। सो एब्जॉर्प्टिविटी इज ए एंड एमिसिविटी इज ई। ठीक है, सो एब्जॉर्प्टिविटी इज डिफाइंड एज, ए को कैसे डिफाइन करते हैं? ए इज इक्वल्स टू एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी अपॉन में एनर्जी absorbed by black body. Why? Because black body absorbs all the radiation falling over it. उसका A तो 1 होता है, black body का A is 1. Clear? So this is absorptivity. Is it clear? Clear है? Is it clear? Yes, sir. And what is E? E क्या होता है? E is energy emitted by a body upon energy emitted by a black body. So this is the definition of absorptivity and emissivity. Clear? Is it clear? Clear है? बोलो। Yes. Okay. Yes, sir. So for black body A is equals to 1, E is equals to 1. किसके लिए? For black body. For black body, A value of A and E is equals to 1. For normal body, A is less than 1 and E is also less than 1 for normal body. So black body will be having A and E equals to 1 and normal body will be having A and E less than. Is it clear? Clear है? याद रहेगा? बोलो। Yes, sir. ठीक, नोट कर लो। जस्ट लेट मी नो व्हेन यू आर डन विद दिस स्लाइड। जल्दी हो जाए तो जल्दी कर लो। चलो।
नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ. किरचॉफ स्टेटेड, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है. अ गुड एमीटर, a good absorber is a good emitter. ठीक है. ठीक है. अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर. सो किरचॉफ का कहना है कि ए और ई हमेशा बराबर होता है. ये नेचर में हर जगह दैट इज वैलिड. ठीक है. जितना, अगर मान लेते हैं if any object, suppose if you take the example of water, so water is having a very good heat capacity. तो जितना टाइम वो गर्म होने में लेगा उतना टाइम वो ठंडे होने में लेगा. ठीक है. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगता है तो उसे ठंडा होने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा. बट व्हेन यू टेक द एग्जांपल ऑफ मेटल, सो it will take less time to reach a higher temperature and also it will take less time to get cool. ये नेचर का लॉ है. ठीक है. ये नेचर का लॉ है. अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी, बहुत तेज़ी से नीचे भी आएगी. हर जगह अप्लीकेबल है. ठीक है. किसी इंसान को अगर गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो गुस्सा ठंडा भी उसका जल्दी होगा. किसी को देर में आता है तो ठंडा भी देर में होगा. ठीक है. ये नेचर का लॉ है. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. तो किरचॉफ ने वही प्रॉपर्टी को देख के बोला है, लॉ दिया इन्होंने, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर. अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब अच्छा कर रहा है तो एमिट भी अच्छा करेगा. इज इट क्लियर? अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर. तो ए और ई का वैल्यू क्या रहेगा? हमेशा ए और ई का वैल्यू क्या रहता है? बराबर. क्लियर? इज इट क्लियर? आपको बस ये याद रखना है, इतना सा. ठीक है. Even insulators, यस बेटा. insulators में भी ऐसे होगा. हाँ, यस. फॉर एनी मटेरियल. देखो, फॉर ब्लैक बॉडी इफ वैल्यू ऑफ ए इज 1, सो वैल्यू ऑफ ई इज ऑल्सो 1 ना. है ना? होता है कि नहीं होता है? Sir, So for any other body, A is equals to E for any body. Clear? Is it clear? sir. ठीक है. अब क्या होता है? अब देखना, जो एनर्जी आता है, सपोज एक, ये जो हम लोगों ने पीछे लिखा था, डी क्यू बाई डी टी डिपेंड्स ऑन टी टू द पावर 4 ए, है ना, इस तरीके से. यहाँ पे आप देखेंगे, सपोज this is the body having temperature T. T is the temperature of body and Ts is the temperature of surrounding. So surrounding will become the source. Surrounding will act like source. So यहाँ से जो एनर्जी आ रही है, this is the incoming power. This one is the power incoming. This one. सो किरचॉफ गेव दिस स्टेटमेंट. किरचॉफ ने यहाँ पे पूरा इनको दिया है कि कितना एनर्जी इस पे फॉल करेगा. सो दिस इज द पावर इन डी क्यू आई बाय डी टी. ठीक है. दिस इज कॉल्ड पावर इन और radiation power falling on surface. Clear? या रेडिएशन पावर एब्सॉर्ब लिखो, जो लैंग्वेज पढ़ रहे हो उसी पे लिखो, एब्सॉर्ब by body. This one. So Kirchhoff gave this one. This absorption वाला पार्ट. तो इधर लगेगा किरचॉफ का लॉ. ठीक है. किरचॉफ का लॉ इधर चलता है. So this incoming is defined as dq in by dt is defined as sigma a सोर्स का पावर 4. क्लियर है कि नहीं? What is sigma? Sigma is Stephen Boltzmann constant.
A is absorptivity, A is area, Ts is the temperature of source in Kelvin. Clear? And now this will emit or radiate energy. So P out, power out, dq out by dt. वो कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे क्या लगेगा? द स्टेफेंस लॉ विल बी देयर. स्टेफेंस का लॉ यहाँ पे लगेगा. स्टेफेंस, What is sigma? यस बेटा. The sigma. सिग्मा इज स्टेफेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. आई विल राइट ऑल द टर्म्स है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं भी. ठीक है. सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, दैट इनकमिंग रेडिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ टी एस टू द पावर 4 एंड आउटगोइंग रेडिएशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4 पावर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इन Kelvin. Okay, so sigma is Stefan Boltzmann constant. अच्छा, this is the proportionality constant. When you remove the proportionality, you have to take this constant. Sigma is Stefan Boltzmann constant. Stefan Boltzmann constant. The value of sigma is 5.67 into 10 to the power minus 8. You don't need to remember the unit, you can derive the unit. Okay. A is absorptivity. A is absorptivity. E is emissivity. E is emissivity. Emissivity. A is area exposed. A is area of body exposed. Ts is temperature of surrounding in Kelvin. ठीक है, गलत हो जाएगा So अदरवाइज. the source or the surrounding? Source and surrounding are same. Temperature of surrounding, we are taking surrounding as source. Clear? Okay, sir. This is temperature of body. Again we will take it in Kelvin. Kelvin में नहीं लोगे तो गलत हो जाएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं. Kelvin में ही लेना पड़ेगा. ठीक है. तो बस आपको ये याद रखना है, the incoming power is equals to sigma a a ts to the power 4. Outgoing power is sigma e a t का power 4. बस इतना याद रखना है. Is it clear? क्लियर है? ये फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसमें आप बच नहीं सकते. ठीक है. टेक दिस फॉर्मूला इन बॉक्स, आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है. इनकमिंग में द टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी टेकन, आउटगोइंग में द टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बी टेकन. क्लियर? इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट कर लो. अच्छा, इसने पूछा एक चीज, देखो डाउट पूछा है, ए एन यू का यूनिट क्या होगा? सो बिकॉज दे आर रेशियोज, है ना, तो देयर विल बी डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस, है ना, उनका कोई यूनिट नहीं होता है. ठीक है. So when you take a net radiation, so you can define that incoming will be incoming power or dq incoming upon में dt is equals to sigma a t to the power 4 and outgoing is equals to dq out by dt is equals to sigma E A t to the power 4. This will be Ts, है ना, this will be Ts and this is T. Okay, and one more thing, as A is equals to E, so you can write this sigma E A Ts to the power 4. Is it correct? Correct है? ये बताओ, what will be dq net by dt? Net radiated, we are talking about net radiated, that is equals to outgoing minus incoming. Is it correct? Correct है कि नहीं? Is it correct? So that is equals to sigma Yes. E A t to the power 4 minus Ts to the power 4. That is the total amount of
power radiated by the body. Clear? Is it clear? Yes, sir. यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है. You can write dq net by dt. Radiated. That is equals to sigma E A t to the power 4 minus ts to the power. Is it clear? क्लियर है? याद रहेगा ये? Is it clear? ठीक है. अगर सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इट विल एब्जॉर्ब मोर. अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है देन इट विल एमिट मोर. क्लियर? ठीक है. ठीक है बेटा, क्लियर है? सर इसमें हायर टू लोअर ही जा रहा है ना, मतलब हाँ, हायर टू लोअर नहीं. रेडिएशन में हायर टू लोअर ऐसा जरूरी नहीं है. नो अगर सर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम भी है स्टिल दैट विल एमिट. वो उसको सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो रेडिएट ज्यादा करेगा. ठीक है. नहीं सर, बिकॉज वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अगर कम है और टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा है तो फिर वो एमिट ज्यादा करेगा. हाँ, मतलब स्टिल एब्जॉर्ब करेगा, है ना? यस. ठीक है, ये एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज एब्जॉर्ब, दिस वन इज एब्जॉर्ब. ये एब्जॉर्ब वाला है एंड दिस वन इज एमिटेड, है ना? क्लियर? Necessary that T is greater than Ts every time, no? No. There is no such kind of condition. Body of temperature may be greater than or less than surrounding. Okay. If T is less than surrounding temperature, then in that case radiated energy will be negative. So that means the body will absorb more energy as compared to the emitted energy. Clear, Sadal? हाँ sir. चलो नेक्स्ट. नोटेड? ये हो गया. Is it done? Yeah, sir. Next is Newton's law of cooling. The last topic, उसके बाद only Lenz's displacement law is there. फिर chapter complete. Next is, अच्छा इस पे क्वेश्चन कर लें यार, है ना? एक क्वेश्चन कर लें क्योंकि इतनी देर से कर रहे हो तो एक क्वेश्चन करना बनता है. ठीक है. एक छोटा सा क्वेश्चन. We will solve a question based on radiation. एक मिनट वेट करो बस, जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट बेटा. This one. Solve this question. ये थोड़ा आसान देते हैं. चलो आप करके बताओ. इजी है, इसे करके बताएं. इजी क्वेश्चन है, अब मैं करके बता रहा हूँ. ठीक है. Copper sphere is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. The sphere is maintained at a constant temperature 500 Kelvin by supplying some power. कुछ पावर इसको दे रहे हैं, है ना? So it was maintained at 500 Kelvin. Surrounding temperature is 300 Kelvin. 300 Kelvin. So initially, you are supplying a power of 210 watt to maintain the temperature. So that means 210 was dq net by dt. That is equals to sigma E A 500 Kelvin minus 200 Kelvin over 4.
Clear? Is it clear? तो वो dq नेट क्यों होगा, वो इनलेट पावर नहीं होगा? नहीं, देखो इनलेट यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा। अगर सेम टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो दैट मीन जितना आ रहा है उतना जा रहा है, उसको आप ये सप्लाई कर दे रहे हैं इतना। है कि नहीं? है कि नहीं? तो मुझे नहीं नहीं समझा। समझा। नहीं समझा, कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, दिस इज डी क्यू इन बाई डी टी, हाँ या ना? करेक्ट। This is हाँ dq सर। out by dt, correct? So temperature will remain same when incoming is equals to outgoing. हाँ या ना? So dq in हाँ by सर। dt plus 210 is equals to dq out by dt. Is it correct now? अब सही है? अब समझा? हाँ सर। अब तो समझा ना? So यहाँ से क्या आएगा? 210 is equals to dq out by dt minus dq in by dt. That is equals to sigma EA 500 to the power 4 minus 200 to the power 4. Is it correct? Correct है? Is it correct? हाँ या ना? मुझे एक डाउट है हाँ बताओ। Yes it is. सर, आपने वो dq/dt plus 210 क्यों किया? Incoming is equals to outgoing, तभी तो मेंटेन रहेगा सेम पे। हाँ सर। अब समझा? But why are you adding 210? This is the incoming power from the surrounding. This is the incoming power from the power supply, this electric power motor. Okay? Clear? Yes, sir. So, वो to keep the temperature constant dqi/dt is equal to dqo/dt. अभी वो उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है इसके तभी लिए। तो मेंटेन रहेगा। यस यस यस। Yes. And in the second case when you coat it, इसमें लिख दिया when the surface of the copper is completely blackened, मतलब बताने का मतलब है कि you are making it a black body, you are making it a black body, तब you need power of 700 watt to maintain it at a temperature of 500 Kelvin. Clear? Is it clear? तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 700 watt is equals to sigma EA, यहाँ पे E का वैल्यू 1 हो जाएगा, सिग्मा इंटू में 1। नाउ वी विल टेक E is equals to 1 इंटू में A 500 to the power 4 minus 300 to the power 4। नाउ टेक द रेशियो, इसका और इसका रेशियो ले लो। सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, you will get 700 divided by this is equals to 1 by E, बाकी सब कट जाएगा। So E you will get E is equals to 1 by 3। ठीक है, E का वैल्यू देखो कितना आएगा, 1 by 3 आ रहा होगा। एक मिनट, 210 नहीं 3 by 10 you will get E is equals to 3 by 10 और 0.3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ E। समझा कि नहीं समझा? वन कहाँ से मिला? हाँ, आपको E का वैल्यू 1 कहाँ से मिला? सेकेंड केस में when you blacken the surface, सेकेंड केस में when you blacken the surface it will become 1। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है। एनी डाउट? अगर कोई डाउट तो अभी पूछ सकते हो आप। कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? तो वो फर्स्ट केस में वो dq/210 क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रहा। dq dqi/dt 210 क्यों है, वो क्यों नहीं है वो, मतलब मुझे नहीं बेटा समझ आ रहा। this is from the source and this is from the this heating electric heater। this 210 power is supplied by the electrical heater, this we are supplying by the heater। okay, clear?
source is the surrounding, right? Source 30. is surrounding. In this case, source is surrounding as well as this heater also. This heater is required to maintain the temperature. Whatever amount of heat is releasing, so the same energy it will be supplied by the heater, so the temperature will remain the same. Clear? Yes, okay. अब समझो? Sir, in the first equation, it should be 300 raised to 4, right? Which one? In the first equation, like 500 raised to 4 minus 300 raised to 4. ओके सॉरी, ये गलती से 200 लग गया है, वो 300 रहेगा हर जगह ना, 2 नहीं 300 हर जगह सेम है. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. So this is applicable when temperature difference is less. ठीक है? This law is applicable when there is slight difference in temperature of body and surrounding. ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी चीज होती है. सपोज इफ यू आर हैविंग अ टी का टेम्परेचर विल बी कितना, अराउंड 70-80 डिग्री सेल्सियस ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा. एंड दिस इज सराउंडिंग इज हैविंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस. दिस इज अ सराउंडिंग. सो इन दिस केस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल. यहाँ पे दिस इज एप्लीकेबल. क्लियर? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल because the T will lose some energy and it will cool down. So Newton's law of cooling is applicable here. But suppose in case of body, you are having a body having temperature 5000 Kelvin and surrounding temperature is 300 Kelvin. Now in this case, this is not applicable. Clear hai? Is it clear? And in question it will be mentioned that whether Newton's law of cooling is applicable or not. So only in case Newton's law of cooling applicable, you will apply the formula of Newton's law of cooling. ठीक है? क्या होता है that we will derive करेंगे, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन you have to remember. फाइनल एक्सप्रेशन याद करना होता है. ठीक है? तो डेरिवेशन चाहिए या सीधे फॉर्मूला लिखवा दें? बताओ. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का सीधे फॉर्मूला चाहिए, डेरिवेशन पूरा करवाएं. ऑल्दो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है. बताओ क्या करना है? तो फॉर्मूला ठीक है. फॉर्मूला हमें यहाँ क्या करना है? सर रिक्वायर्ड नहीं है तो फॉर्मूला नहीं, चलो याद रहेगा ना, मैं लिखवा दे रहा हूँ, पूरा करा दे रहा हूँ क्योंकि टाइम है भी. देखो अच्छा, यू हैव टू रिमेम्बर, ये याद रखना, ये गलत मत ये कि कहीं पे भी एप्लीकेबल है, नहीं. दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस. क्लियर? डेल्टा टी इज लेस. What is delta T? T of body minus T of surrounding is delta T. ठीक है? Clear? Is it clear? Clear है कि नहीं? Now the derivation of Newton's law of cooling. देखो, there is a body having temperature T. So T is the temperature of body. Ts is the temperature of surrounding. Clear? Ts is the temperature of surrounding. So the dq by dt net वाला, the net is equals to sigma EA T to the power 4 minus Ts to the power 4. Is it correct? क्या ये correct है? ये तो हमेशा सही था ना पीछे से. This is the original formula. You can apply it in Newton's law of cooling as well as normal question. बट जहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग दिया रहेगा वहां पे वही लगाना है. ठीक है?
लेकिन we will derive the Newton's law of cooling from this primary equation. Clear? Is it clear? ठीक है. T minus Ts is delta T. This is the temperature difference between, इसको बोलेंगे temperature difference between body and surrounding. Clear? Surrounding. So you can write T is equals to Ts plus delta T. Correct? Is it correct? So it will radiate the energy. ठीक है? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर. So what we'll do, we will take this equation for the derivation. There was the body है, having temperature T. This is T surrounding. So you can write T is equals to Ts plus delta T. Ts plus delta T. So this is equals to sigma A. Value of T is equals to Ts plus delta T. Now we will apply binomial expansion. Binomial याद है? Binomial expansion याद है? नहीं याद है? Sigma E A. Take the Ts to the power for common. 1 plus delta Ts to the power 4 minus Ts to the power 4. That is equals to sigma E A. ठीक है? When you expand this, तो ये यहाँ पे land कर जाता. This will land here, है ना? That will become 1 plus 4 delta T Ts minus Ts to the power 4. So when you again expand, so this is sigma EA Ts to the power 4 plus when you multiply this and this, that will become 4 Ts to the power 3 delta T minus Ts to the power 4. Now you can eliminate this Ts to the power 4, Ts to the power 4. The final expression will become sigma EA 4 sigma EA Ts to the power 3 delta T. This is dq net by dt. Clear? Is it clear? Clear है? Now this body is, yes beta. dt by ts is not large enough, so binomial shouldn't work now. dt by no delta t is small ना. बाइनोमियल कब लगता है? याद करो, बाइनोमियल कब लगता था? बहुत छोटा होता है. 1 plus a by b to the power n when a is very very less than b ना. So delta t is very very less than ts ना. यहाँ पे तो छोटा है ही ना, स्लाइट डिफरेंस है ना. ठीक है? सर. क्लियर? But then sir, Newton's law of cooling पे नहीं होगा ना, because वो should not be too small, no? नहीं, डेल्टा टी इज स्मॉल ना, ये तो हम लोग लेके चल रहा है ना, डेल्टा टी इज स्मॉल. ठीक है, लेके चल रहा है. फाइनल टर्म आपको याद रखना है, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन जो है मैं तो बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी नोटबुक में बना रहे. ठीक है, फाइनल टर्म जो मैं अभी लिखवाऊंगा वो याद रखना है आपको. ये तो याद ही नहीं रहेगा, इतना कहाँ से याद रहेगा. ठीक है. अच्छा, द बॉडी विल बी हैविंग सम मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना, एंड द बॉडी विल ड्रॉप एट टेम्परेचर dt, है ना. दिस इज टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ बॉडी. सो m इज mass of body, s is specific heat capacity, and dt is temperature. It is temperature drop of body. This is not the temperature difference between body and surrounding. This is the temperature drop of body. Suppose the body temperature drops from 50 degrees Celsius to 45. So that means 5 degrees Celsius is the drop. Okay. So you can write this equals to minus ms dt by dt.
Why I'm writing this? Because ms dt will become dq, and this is time. Okay, why I'm taking this minus sign? Can you tell me why I'm taking this minus sign? कोई बताएगा मुझे? Temperature drop. नेगेटिव साइन shows drop in temperature, है ना? Drop in temperature. So whether you take dt negative or take this minus sign, एक ही चीज आएगा. ठीक है, अब अगले उसमें क्या करेंगे? पहले इसको नोट कर लो, आप कहीं पे नोट कर लो जल्दी से. अभी देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसको पहले कहीं पे नोट कर ले जल्दी से. चलो. So that mean if you are having a body, एक बॉडी है, उसका टी टेम्परेचर है, एंड दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर. सो dq by dt is equals to 4 sigma EA Ts to the power 3 delta T is equals to minus ms dt by dt. Now what you can do, you can write dt by dt is equals to 4 sigma EA Ts to the power 3 divided by this minus ms. Take this negative sign, no? Take this as a constant k, the entire term as a constant k. So now you have to remember only this, that dt by dt, now we will take this as k is equals to k delta t. Now you have to remember this formula only, this one. Now what is dt? Dt is drop in temperature of body. dt is time. K को you can take constant, and delta T is temperature difference between object and surrounding. अच्छा, there is some theory, not the theory, there is a calculation to find out delta T, because we don't know what will be the temperature of body. क्योंकि T तो लिख दिया मैंने. Suppose a body is going from T1 temperature to T2, and Ts is the surrounding temperature. So first you have to find T average. What will be T average? It will be T1 plus T2 by 2. Clear? T1 plus T2 by 2. So what will be delta T? Delta T will be T average minus T surrounding. First you need to find out T average. पहले T average निकालना पड़ेगा, ये भी ज़रूरी है, otherwise you will solve it in incorrect method. ठीक है, incorrect way में आप solve करोगे. ठीक है, तो अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग फ्रॉम T1 to T2, so you have to calculate what will be the T. T will be T average. T क्या हो जाएगा? T is equals to T average. So you have to calculate T average. What is the average temperature of body? So that will be T1 plus T2 by 2. Then you have to take delta T as T average minus Ts. Clear? Is it clear? आपको बस ये वाला याद करना है, this formula. ठीक है? Yes, Adele. क्वेश्चन का वैल्यू मिल जाएगा? क्या बेटा? क्वेश्चन में हमें k का वैल्यू मिल जाएगा ना? नहीं, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, पता चल जाए कैसे सॉल्व करना है. जितना मुश्किल दिख रहा है इतना मुश्किल होता नहीं है. क्वेश्चन अभी मैं दूंगा आपको, इसको नोट कर लो पहले आप. चलो, द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस. ऐसा आएगा, देखो. अ बॉडी takes 10 minutes to get. अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो रह गई है, दिस dt by dt वी कॉल इट रेट ऑफ कूलिंग. dt by dt इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग. इसी को बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग. गलती मत करना, dq by dt इज नॉट रेट ऑफ कूलिंग, dt by dt इज रेट ऑफ कूलिंग. वी कॉल इट रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है, कहीं पे नोट कर लो इसे. रेट ऑफ कूलिंग dt by dt को ही बोलते हैं. टेम्परेचर कितनी तेजी से ड्रॉप हो रहा है उसको रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, द क्वेश्चन विल कम लाइक दिस. अ बॉडी टेक्स 10 minutes to get cool from 70 degrees Celsius
to 60 degrees Celsius. Clear? How much time it will take to get cool from 60 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. T surrounding is given 40 degree Celsius. T surrounding is given 40 degrees Celsius. You have to solve this question. पहले आप ट्राई करो, then I will solve it. पहले आप ट्राई करो, इसे ट्राई करें सभी लोग. चलो कैसे होगा देखो. The first one, when it get drop from 70 to 60 degrees Celsius. So when the temperature drops from 70 to 60 degrees Celsius, so what is dt? Dt is 70 minus 60, so that is equals to 10 degree Celsius. What is time here? Time कितना है? Time is 10 minutes. Clear? The formula is dt by dt is equals to k delta t. Clear? So what will be delta t? Delta t is equals to t average minus t surrounding. So what is t average? यहाँ पे t average कितना आएगा? 1760. Average of 1760 बोलो. T average will be 70 plus 60 by 2. That is equals to 65 ना? 65 minus surrounding temperature is 40. So is it 25? Correct है? 25? Clear? Yes. Okay. So dt by dt is equals to k delta t. Dt is 10, time is 10 minutes, k is k. What will be delta t? Delta t is 25. So this is the first equation. Now for the second one, with temperature drop from 60 to 50 degrees Celsius. So dt is 60 minus 50, that is equals to 10. Again, time you have to find the time. Time is t. Now you can write dt by dt is equals to k delta t. Now what will be delta t? Delta t will be t average minus ts. What will be average temperature when 60 to 50? It will be 55 now. 55 minus 40, that is equals to 15. So you can write k into a 15. Second equation. So delta t is 10, t is t, k into a 15. Now when you take the ratio of equation 1 and equation 2, k will get cancelled. K will get cancelled. Clear? When you divide equation 1 and equation 2, you will equation 1 by equation 2. So you will see t by 10 is equals to k will get eliminate 25 by 15. Clear? So that is equals to 5, 3, 5, 5, 50 by 3. 50 by 3 will be the value of t. Is it correct? Is it correct? Yes, sir. Correct है? So you have to solve the question as per this method, है ना? इस तरीके से आप solve करना है. हो जाएगा? Clear है? Is it clear? बोलो बेटा, याद हो जाएगा ऐसा? मुश्किल तो नहीं है? कोई डाउट तो अभी पूछ सकते हो. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ समझने के लिए. Last topic of radiation is Wien's displacement law. Wien's displacement law. This law tells that the peak wavelength that is visible in radiation, lambda m, into the temperature of body is constant. You just need to remember this formula only. सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ नहीं. Actually this is equals to c, but usually don't need to remember the value of c. C is equals to 0.288 centimeter Kelvin. This is a unit है ना. ठीक है, 0.288
centimeter Kelvin. When you take lambda in centimeter and temperature in Kelvin. So what is lambda m? Lambda m is wavelength of peak radiation that is visible to you, radiation, and T is temperature of body, temperature of body. मैंने एग्जांपल दिया था, सपोज यू आर हैविंग ए आयरन बार. सो आयरन बार है, दिस इज आयरन बार, iron bar. So when you heat the iron bar, what will happen? As you increase the temperature, the lambda will decrease. So initially you will see red color. Okay, the lambda is, because when you increase the temperature, the lambda will decrease. Then orange, then green, yellow, or orange, yellow, green, blue, indigo, violet, and then white color. Then white. Clear? So when you increase the temperature, T increases the lambda. T increases, lambda decreases. Clear है? T increases, lambda decreases. Is it clear? ठीक है. आप देखो, एक बॉडी जो होती है, दैट बॉडी विल रेडिएट ऑल द रेडिएशन, सारे के सारे लैम्डा रेडिएट करेगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सब कुछ करेगी, लेकिन दिखेगा वही जिसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज़्यादा है, जिसकी वेवलेंथ पीक पे है, मतलब कि जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है. इज इट क्लियर? क्लियर है? हाँ सर. ओके. हाँ इसका सर. ग्राफ कैसे बनता है? द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ग्राफ ऐसे दिखता है. This is I. I is, I क्या होता है? What is I? This is energy, not the energy. This is the power per lambda. मतलब कि ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका, पावर पर लैम्डा, एंड दिस इज लैम्डा. तो ये कैसा दिखेगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट विल गो लाइक दिस, इस तरीके से. ठीक है. सो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्या है? दिस वन इज द लैम्डा एम. ये लैम्डा एम है. ठीक है. लैम्डा m1. दिस इज फॉर टेम्परेचर 1. व्हेन यू, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? यू कैन सी दैट दिस स्पेक्ट्रम इज हैविंग लैम्डा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी. जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारा लैम्डा आर देयर है ना, ऑल लैम्डास आर देयर. मतलब रेडिएट वो सब कुछ करेगा, बट विजिबल कौन सा होगा? दिस वन. दिस विल बी द पीक वेवलेंथ, द वेवलेंथ विच इज हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ फोटॉन, है ना. सबसे ज्यादा फोटॉन जिसमें होंगे वही दिखेगा. जैसे अगर आपको आयरन बार रेड दिख रहा है, दैट डजंट मीन वो ऑरेंज, येलो और ग्रीन इतने रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है. छोड़ रहा है, वो छोड़ सारे रहा है, लेकिन दिख रेड इसलिए रहा है क्योंकि रेड के नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा है. द इंटेंसिटी ऑफ रेड इज एट पीक. ठीक है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. व्हेन यू So, इंक्रीज, हाँ बेटा, क्या हुआ? I क्या है? dt by d lambda. I क्या है? I is intensity. I is intensity. And P is power. जो पीछे पढ़ रहे थे, पावर. ठीक है. क्लियर? एंड व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अच्छा बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा में क्या होगा? घट जाएगा ना, आया ना. सो दिस ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. किधर शिफ्ट हो जाएगा? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, इस तरीके से. फिर और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है. अच्छा नहीं बना यार. अगर थोड़ा सा टेम्परेचर आप और इंक्रीज कर दोगे, दिस विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर लेफ्ट, है ना. तो ये इधर आ गया, इसका पीक यहाँ पे आ गया, इसका पीक कहीं यहाँ पे आ गया. और तो पीक दिख नहीं रहा हुआ, ऐसा अच्छा सा पीक नहीं दिख रहा है. पीक बनाने के लिए इसको यहीं से डिक्रीज करना पड़ेगा, ऐसे डिक्रीज करना पड़ेगा. ऐसा, इस तरीके से. ठीक है. So when you increase the temperature, the graph will shift towards left. The graph
will shift. This is T1, this is T2 and this is T3. यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है T3 is greater than T2 greater than T1. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ग्राफ shifts left with increase in T. क्लियर, याद रहेगा ये? इज इट क्लियर बेटा, याद रहेगा? हाँ सर। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज नोट कर लो, इसे नोट कर ले सभी लोग, बना लें. सो दैट मीन अ बॉडी विल रेडिएट, है ना, अ बॉडी radiates all wavelength from lambda is equals to 0 to lambda tends to infinity, but lambda m, that is the peak wavelength will only be visible due to high intensity. Due to high intensity, only lambda m will be visible. Clear? So that means if you take this graph, this one, if you take this graph, so area under this graph, what it will give you? This will give you, when you take this graph, so what will area under this graph will give you? तो बताएगा area under this graph, तो बता सकता है मुझे? What will area under the graph will give? Any idea? No idea? No problem. इधर देखो, intensity the lambda. not the intensity is already given. Power. Yeah, that will give power. Okay, so when you take so this is the lambda m, this is the lambda m, so when you take area of any strip, suppose if you take area of this strip, this is strip, the differential area of this strip is equals to I d lambda. So when you put the value dp by d lambda into d lambda, the d lambda will get eliminated. So the area of this strip is equals to power, that will give you power. So when you calculate area, the net area, when you calculate the net area A, so that means when you integrate it from 0 to infinity, so the net area of this graph will give you sigma EA t to the power 4, net power emitted, net power, है ना, power out. क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ एमिशन की बात हो रही है, एब्जॉर्प्शन की बात ही नहीं होती है. ठीक है, नेट पावर एमिटेड, दिस इज द एरिया. इज इट क्लियर? So the net area of this graph will give you the net power emitted, that is equals to sigma EA t का power 4. समझा? Is it clear? Yes sir. ठीक है, क्लियर है. अब एग्जाम में क्या करेगा, दे विल आस्क यू कि लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 तक बताओ कितना पावर एमिट किया है, लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 2 तक. सो व्हेन यू कैलकुलेट एरिया फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2, so that will give you power emitted from lambda 1 to lambda 2 wavelength. बताओ मुश्किल है क्या? Is it difficult? जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही वे आपको याद क्या करना है, मोटा मोटा देखो, लैम्डा एम इंटू में टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, बस ये याद रखना है. और ये याद रखना है कि दैट ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर?
Is it clear? Yes, sir. Any doubt? Yes, Fidel. Any doubt? So the product of lambda and intensity gives you power, no? Lambda m into min. Repeat करो फिर से बोलो. Lambda into intensity will give you power, no? Lambda into में d आया, that will give you power because intensity is dp by d lambda ना. So when you multiply it with the lambda, you will get the power ना. ठीक है? चलो. So in theory of radiation, that's all about the theory of radiation. ठीक है? इतना ही रखेंगे. Theory पूरी complete होती है. About heat transfer, thermal properties, that is completed. The next topic is thermodynamic process and kinetic theory of gas. वो हम लोग next lecture में start करेंगे. तो आज यही रखेंगे.